Hello students, how are you? I hope you all are happy, safe at your home. My dear student, today we will be decided our next chapter glimpses of the past. Okay, listen me carefully because we will discuss and read the glimpse of the past. So let's get started. Glimpses of the past means अतीत की झलकियाँ. It was written by S.D. Sawant. So first of all, we will discuss about the introduction of S.D. Sawant. Shivaji Sawant, his birthday was 31st August 1940 and death on 18th September 2002. He was an Indian novelist in the Marathi language. He is known as मृत्युंजयकर मीनिंग होता है मेकर ऑफ मृत्युंजय फॉर राइटिंग द फेमस मराठी नॉवल मृत्युंजय. ही वॉज द फर्स्ट मराठी राइटर टू बी अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस यानी रेपुटेबल प्रतिष्ठित मूर्ति देवी अवार्ड इन 1994. ओके. So before you read this chapter, we will discuss some facts. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. Glimpses yani in the form of pictorial means in the form of the pictures. Pictorial pictures होती है. Glimpses यानी होता है short looks. Okay, झलक. You can see this picture. One woman is singing a song. She is a Lata Mangeshkar. Okay, remember this point. So Lata Mangeshkar at a function in Delhi. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. I think as you all know this song. ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो जरा कुर्बानी. यस, हेयर इज मार्टियर्स मीन्स होता है कि दोज हु डाई फॉर देयर कंट्रीज सेक. यू कैन से शहीद. फंक्शन मीन्स पब्लिक प्रोग्राम एंड रिकॉल मीन्स रिमेम्बर याद करना. एंड सैक्रिफाइसेस मीन्स गिविंग लाइव्स फॉर द शेक ऑफ ए ग्रेट कॉज, कि अपने देश के लिए बलिदान देना. सैक्रिफाइसेस यू कैन से बलिदान देना, कि गिविंग लाइव्स फॉर द शेक ऑफ ए ग्रेट कॉज. तो इन दिस पिक्चर लता मंगेशकर सिंगिंग ए सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. एंड दिस फंक्शन वॉज हेल्ड इन दिल्ली. These pictures and speech bubbles. Speech bubble means very short statement, बहुत ही छोटा उल्लेख. Will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. You can see this picture. The company's conquest 1757 to 1849. कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है विक्ट्रीज, विजय. जो कंपनी की जो विजय थी उनकी पिक्चर आप अच्छी तरह देख सकते हैं. यू कैन सी क्लियरली दिस पिक्चर. इंडिया 1765 एंड इंडिया प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स होता है एरिया या रीजन, क्षेत्र. की जो ब्रिटिश का क्षेत्र था, जो ये ब्लॉक स्पॉटेड है इसके अंदर इंडियाज के मैप के अंदर, यहाँ अपना ब्रिटिश एम्पायर था. ओके. एंड यू कैन सी अनदर पिक्चर. Indian princes were short-sighted that upstart Raja Baha called the English merchants. They will help me to defeat him. Now the people had to peace due to such constant fights. Now another third picture is related to the rivalries यानी enmities, जो अपने दुश्मन थे. Help the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. And now fourth picture related to Tipu of Mussoorie, a far-singing ruler like the brave Tipu of Mussoorie fought the British till he died fighting.
So now we will discuss the picture of second. The company's conquest. This start was from 1757 to 1849 with its superior weapons. Superior means होता है better than the rest, मतलब श्रेष्ठ. weapons यानी artillery, अपने जो हथियार होते हैं. The British East India Company was extending means होता है becoming larger in area और effect, मतलब विस्तार करना. Its power in 18th century India, कि जो भारत में 18th सेंचुरी थी उसके अंदर जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी पावर्स को एक्सटेंड कर रही थी, बढ़ा रही थी विद इट्स सुपीरियर वेपन्स. और किसके साथ? जो सुपीरियर वेपन्स थे उसके जो बेटर श्रेष्ठ जो आर्टिलरी हथियार थे उनके साथ. नाउ थर्ड पिक्चर इज इंडिया 1765, जिसके अंदर है कि इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी, और वहाँ जो अपने ब्रिटिश टेरिटरी हैं, जो एरियाज रीजन है, कि कैसे उन्होंने भारतीय राजकुमारों को के साथ अपना जो एम्पायर था उसको एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया. नाउ फोर्थ पिक्चर इज रिलेटेड टू इंडियन प्रिंसेस. ओके, वर शॉर्ट साइटेड, कि जो भारतीय राजकुमार थे वो बहुत ही अल्प दृष्टि थे. शॉर्ट साइटेड मीन्स होता है म्योपिक, या यू कैन से नियर साइटेड, अल्प दृष्टि. कि जो भारतीय राजकुमार थे वो बहुत ही अल्प दृष्टा थे, मतलब बहुत ही छोटी सोच रखने वाले थे. दैट अप स्टार्टेड राजा बाह, तो इसके अंदर एक राजा था. अप स्टार्टेड यू मीन्स एरोगेंट, कि जो अभी नया नया जो नवाब बना था, और उसका नाम था बा. कॉल द ब्रिटिश, वो अपने जो उसमें थ्रोन पे बैठा हुआ है और वो अपने जो कर्टियर्स है उनमें से एक कर्टियर्स को बोल रहा है कि कॉल द ब्रिटिश इंग्लिश मर्चेंट्स, कि अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. डिफीट मीन्स कॉन्क्योर, जीतने में, कि वो मुझे अपना जो साम्राज्य है आसपास के जितने भी, वो मुझे कॉन्क्योर डिफीट करने में मेरी हेल्प करेंगे. द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. कॉन्स्टेंट मीन्स होता है कंटिन्यूस, लगातार, और पीस मीन्स होता है क्वाइट, या यू कैन से अनदर वर्ड स्टेट ऑफ नो वॉर. तो वहाँ के जो लोग थे इस तरीके से जो कंटिन्यूसली जो फाइट्स हो रही थी, वार हो रही थी, उसकी वजह से वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनमें शांति नहीं थी. अगेन यू कैन सी दिस पिक्चर्स. ओके, दे आर रिलेटेड टू ब्रिटिश Englishman, and he was Tipu Sultan. Okay, he belongs to Masuri. He fight for the citizens and publics. Now they are discussing about the Tipu Sultan's when he fought against the British Empire. Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. How did Indian react to these conquests? मतलब जो ये जो विक्ट्रीज हुई, जो ये वॉर्स हुए, तो उसमें जो इंडियंस की बाद में जो रिएक्शन था, उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई? सो सम वर टॉकिंग बिटवीन देम कि थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर एंड नो लूटिंग बाय ठग्स. इट इज गॉड हु sent the British. Our destiny is linked with them. The white man has killed or dethroned our king. Some kings were not good, but after all they were all of this land. Now we have become slaves of foreigners. Okay, now we will discuss about these pictures. So now discuss these pictures. The rivalries means enmities, जो उनके प्रतिद्वंदी थे. हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनकी हेल्प कर रहे थे रिवलरीज. एंड इट कुड इजीली सबड्यू मीन्स होता है सप्रेस, कि उनको दबाने में. इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, कि जो भारतीय राजकुमार थे उनको वो एक एक करके आसानी से जीत रहे थे. नाउ अ फार सिंगिंग मीन्स थिंकिंग अहेड, आगे की सोचने वाला. अ फार सिंगिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मसूरी, तो आगे की जो सोच रखने वाला था, थिंकिंग अहेड, वो था टीपू, जो कि मसूरी से रिलेटेड था. फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और वह ब्रिटिश जो इंग्लिश लोग थे उनके साथ वो लड़ाई करता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी. सो हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? कॉन्क्वेस्ट मीन्स विक्टरीज, विजय.
तो इस उसके बाद जब टीपू ऑफ मसूरी उसने उनके ब्रिटिश के अगेंस्ट जब वॉर किया, तो जो भारतीय लोग थे उनकी विजयों के बाद उनका रिएक्शंस क्या था. सो नाउ वी विल डिस्कस. So some people said about thank God there is a peace in the country now. तो कुछ लोग बोलते थे कि भगवान का शुक्र है कि हमारी जो कंट्री है उसमें पीस शांति हो गई है. No more wars and no looting by thugs. Thugs means robbers. कि जो डाकुओं के द्वारा कोई भी लूट नहीं हो रही है, कोई भी वॉर नहीं हो रहा है. Another said it is God who sent British. कि ये तो भगवान है जो ब्रिटिश के लिए भेजा गया है. Another said our destiny is linked with them. Destiny यानी fate, you can say भाग्य, and linked means connected, जुड़ा हुआ. तो दूसरा कहता है कि ये हमारा भाग्य है जो कि उनके साथ हम जुड़ चुके हैं. Another said कि the white man has killed, कि जो ये white man यानी रिलेटेड टू ब्रिटिश मैन, कि जो ये सफेद जो अंग्रेज लोग हैं वो उसको मार देंगे और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, और हमारा जो ये राजा है हमारे जो कंट्रियों के, उनसे वो डिथ्रोन्स यानी रिमूव्ड फ्रॉम पावर, की शक्ति से उनका जो थ्रोन है सिंहासन है वो हथिया लेंगे. अनदर सैड कि सम किंग्स वर नॉट गुड, कि कुछ राजा थे वो अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल परंतु बाद में भी दे वर ऑफ दिस लैंड, परंतु वो हैं तो इसी धरती के. नाउ अनदर सैड नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कि अब हम क्या हो जाएंगे कि जो ये फॉरेनर्स हैं, ये जो विदेशी हैं, उनके हम दास हो जाएंगे. Slaves means कि a person who is legally owned by another person for work, कि दूसरे लीगली वो दूसरे के काम करने के लिए दास बन जाता है. एंड फॉरेनर्स मीन्स पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, की जो दूसरे लोग देश के लोग होते हैं, यू कैन से फॉरेनर्स, विदेशी. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर रिलेटेड दिस पैरा या पिक्चर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पिक्चर टेकन फ्रॉम, ये पिक्चर कहाँ से ली गई थी. तो दिस पिक्चर वॉज टेकन फ्रॉम ए फंक्शन इन दिल्ली. Second question is who is singing the song in the picture. So answer is Lata Mangeshkar, the famous singer, is singing the song in the picture. Third is for whom was the song sung, किसके द्वारा ये जो किसके लिए ये गाना गाया गया था. तो this answer is the song was sung in the memory of martyrs, कि शहीदों की याद में ये गाना गाया गया था. Fourth question is what things were helpful to the British company in extending its power in India, कि इंडिया के अंदर अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए ब्रिटिश की हेल्प किन चीजों ने की. तो आंसर इज द सुपीरियर वेपन्स ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड रिवलरीज अमंग इंडियन प्रिंसेस वर हेल्पफुल टू द ब्रिटिश कंपनी इन एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन इंडिया, कि जितने भी ये श्रेष्ठ हथियार उनके थे जो ब्रिटिश कंपनी के, वो अपने जो राइवलरीज थे, जो जिनके बीच में एनिमिटीज थे, युद्ध चल रहे थे, जो प्रिंसेस राजकुमार थे, उन लोगों ने इनकी हेल्प की ब्रिटिश कंपनी में. अनदर क्वेश्चन इज राइट द वर्ड्स विच मीन्स. I will give you some words, so you will reply the same meanings of this. Victories means conquest, and another is natives means countrymen. So my dear student, remaining part we will discuss in our next video. Till now, have a nice day.